time I've enjoyed so much the hospitality of all of you, and it is good to see so many young students now who are just, I think all of you are in school? Yes, sir. Standard 12? 11. Okay, very good. So it's a great pleasure to be here, and I really hope that most of you will be inspired to take up a career in science and technology. So the title of the talk, as you're seeing, is Recent Developments in Quantum Information Science, but maybe it is some kind of strange word for you, because let me just ask you, all of you are students in 11th and 12th, so how many of you have heard of this quantum or quantum information? Have you come across this word, quantum? No, sir. Yeah, okay. So it is quite natural that you don't come up with this word, but you are using technology these days. I mean, it's just starting. If I talk of old technology like transistor, people will say they are very old. But nowadays, all of you use what? Many of you use mobile phones, okay? Before that, you use Xerox machines, okay? When you go to malls, you climb escalators, the door opens and closes on its own. The escalator starts when no one is there. The escalator does not move. When somebody approaches, the escalator starts moving. All of you have seen that. And these are very basic technology of day-to-day use. And if you think of higher technology, then there are many things. People send rockets. Nowadays, we also, India sent a rocket Chandrayaan to move. So in each and every technological innovation in the present day, it is very hard to think of anything which does not follow or does not make use of the subject of physics. And even in medical science, things actually use the technology which is governed by basic physics. And what is the central pillar of basic physics? It is called quantum mechanics, quantum physics. Okay? Because in school, when you start learning physics, you learn what? You come across Newton's laws. Okay? Everybody has heard of Newton's laws. But now Newton's laws can describe to you, suppose you have a big object or you have a ball. If you throw the ball from here to one particular place, giving some force to it, then Newton's law will tell you how far the ball will go. Okay, so all of you have done it. But now just imagine that I have a small ball. Okay, very small ball. Like in the last lecture, you were hearing of nanoscale particles. Okay, yes, very small particles. 10 to the power of, how many of you noted? 10 to the power of minus 9 meters. Okay. So if you use actually that small particles, then if you start applying Newton's law, and somebody tells you that throw that small particle by some means to somewhere else, and you apply Newton's law to check whether the particle will actually go there or not, what answer will you get? Do you have any idea? It is not adequate. Why? Because if you send 1,000 such particles, on average, Newton's law will be correct. But if you want to describe one such particle, then we will not go anywhere. We will not know anything. So for that, what is the subject? What is the mechanics? What is the law we have to use? Instead of Newton's law, we have to use Schrödinger's equation for that. Okay. And instead of classical mechanics, we come to this field of quantum mechanics. So if you are dealing with small particles, subdomain, then you have to use, then classical physics, Newton's laws fails, you will have to use quantum mechanics, quantum physics laws. That is what I would like to convince you. And the second topic, second part of the title is that you are seeing here that I have not just written quantum physics, but I have written quantum information. Okay. So what is information? Okay, so information is something again which you have a vague idea in your mind that if you know something, that is called information. But how is that knowledge, how is that transmitted to you? Okay, that is also transmitted and stored by you and recognized by you by some laws of science. So what is that law of science? I want to convince you today that that law of science also obeys quantum science, quantum mechanics, not classical Newton's law. So that is what I would like to try to convince you in this lecture. And there is one more thing, let me request all of you, suppose you don't understand anything or you want to question me, feel free. Whenever there is some doubt, please raise your hand. I will be happy to answer. Because after the whole purpose of this is interaction.
Because nowadays there are many books, net is available, you can go back home and just check the web. If you want any information or any books, topics, you can always see. So why am I here for you? Because I want you to understand, I want you to ask me questions. That is the whole point. And it does not matter how much I cover, it only matters whatever I cover, that is, you get something out of it. Okay, so as I was saying, we have to think of the shift from classical to quantum mechanics. This classical physics was, actually the Newton was the inventor of classical physics laws, but that is now more than 300 years old. So people have realized, starting not from this century, but from the last century, that if we are talking of small, in quantum mechanics, you will have to go to something else, which are mathematically called operators. By the way, those of you who want to do physical science, especially physics, it is inseparable from mathematics. That is also something which I would like to actually inspire you to do. Because unless you study mathematics, you will not be able to understand this. So in mathematics, there are certain objects which are called operators. Okay. So what are operators? That is the subject of learning. You will feel that. है कि एग्जैक्टली वो कहाँ जाएगा, यही है ना न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ का मतलब क्या है? F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप पर्टिकुलर इस पे फोर्स दोगे और उसकी मास है पार्टिकल की, आप उसको बता सकते हो कि कहाँ पे फाइनल पॉइंट पे वो पहुंच रहा है। और अगर इस इंस्टेंस के बाद उसके ऊपर और दूसरा कोई फोर्स नहीं लगता, तो वो स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा। यही न्यूटन लॉ इनर्शिया का है, ये आपको मालूम है। इज दिस ओके? बट उसके बाद अगर आप छोटे लेवल पे सोचोगे, स्मॉल पार्टिकल जैसे नैनो स्केल पार्टिकल, जैसे हम देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर, और आप जानना चाहोगे कि फाइनल पार्टिकल कहाँ पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप तो जितने छोटे लेवल पे आप इसे तो देख नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा या डिटेक्टर लगाना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए इस जगह पे उसको डिटेक्टर से पहचान लिया कि पार्टिकल यहाँ पे आया, बट बीच में क्या हुआ था, कौन से पाथ से पार्टिकल गया, ये आप नहीं बता सकते, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। दैट इज द होल पॉइंट। यही है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में फर्क, आप नहीं बता। दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ इट। क्वांटम मैकेनिक्स में जब तक आप पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी स्क्रीन पे डिटेक्ट करते हैं या माइक्रोस्कोप से उस पर लाइट शाइन करके आपको पता चलता है पार्टिकल उधर है, आप नहीं बता सकते कि कौन से पाथ में पार्टिकल को फॉलो किया। बस ये सिंपल सी चीज है। आई होप दिस इज ओके अप टू दिस। देन सेकेंडली मैं बात कर रहा था कि क्या फर्क है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स ने आपने क्या सीखा, सिंपल फंक्शन आपने सीखा है। जैसे फंक्शन है, कोई एक एक्स वेरिएबल का फंक्शन है f ऑफ x, वो आपको x से दूसरे पॉइंट में ले जाता है। सिमिलरली आपका ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में आप दोगे एक पर्टिकुलर जैसे फोर्स फंक्शन है, ठीक है, आपको पता है कि आप उसका पोजीशन है, आपको पता है पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, कहां तक जाने वाला है। क्वांटम मैकेनिक्स में सेम जो फंक्शन है ऑपरेटर के ऊपर फंक्शन। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में p है, मोमेंटम है, आपको सबको मालूम है मोमेंटम का डेफिनेशन, मालूम है ना मोमेंटम का डेफिनेशन। बट अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखोगे तो मोमेंटम भी एक ऑपरेटर बन जाएगा, सिंपल फंक्शन नहीं बना रहे हैं। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर बन जाएगा। आई अब सब लोगों को मालूम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की पढ़ाई आपने शुरू करी है, तो जनरली वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर बन जाएगा। सिमिलरली जो भी आपने सीखा है अभी तक क्लासिकल फिजिक्स में, जैसे और फंक्शन हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, पार्टिकल्स के, जैसे एनर्जी, ये भी एक ऑपरेटर बन जाएगा। तो जिस लेवल पे हम दुनिया को समझते थे क्लासिकल लॉज से, जैसे ग्रेविटेशन हो गया या क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, उसमें हमको चेंजेस लानी पड़ेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकते। और हमारा क्या मकसद है, बिकॉज वी वांट टू गो डाउन टू द डीपेस्ट लेवल, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जैसे हम बोल रहे थे, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इज आफ्टर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वी वांट टू गो डाउन टू दैट लेवल, इवन विद इन एटम्स, इनसाइड एटम्स आपको मालूम है, आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, क्या है अंदर, न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको सब समझना है तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। दैट इज व्हाट माय पर्पस। ओके, तो इसलिए हम क्या करें, हम देखते हैं ये क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स तो क्या है बेसिकली, नटशेल में क्या बोल सकते हैं। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे द स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक अप द यूनिवर्स बिहेव।
जैसे मैं बोल रहा था अभी स्मॉल पार्टिकल से ही सारा एवरी द यूनिवर्स इज बिल्ट अप, तो कैसे वो बिहेव करता है, वी वांट टू लर्न इट एंड देयर बिहेवियर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी आर फेमिलियर विद देम। ये भी मैं बोल रहा था पहले, हमको जो इंट्यूशन है हमारी, हम जो देखते हैं लार्जर ऑब्जेक्ट से, जैसे आप गाड़ी में बैठ के जाते हो, ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दिया है तो गाड़ी कितना आगे जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, आपको सब मालूम है। या आप खेलते हो क्रिकेट या फुटबॉल या बैडमिंटन, जो आपको मालूम है, आप एक रैकेट फोर्स से मारते हो बॉल पे कहाँ तक, बट इसमें वो सारा चेंज लिया। सो द क्वांटम थ्योरी इज क्वाइट काउंटर इंट्यूटिव, ये मेन पॉइंट है समझने वाला। तो ये कैसे डेवलप हुई थी? ओके, जैसे मैं बोल रहा था, between 1900 and 1930 there was some very great famous physicists and their work actually led to the development of quantum theory. जैसे उनमें से कई नाम है, first of all was Max Planck, okay. Albert Einstein का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा यार, this is very famous and he is also very more well known for the theory of what? Theory of relativity. However, he was also one of the founding fathers of this quantum theory that people, maybe some people don't appreciate so much in the common world, but all of the scientists who are working will very well know. When you will study physics, for example, when you will study physics in your graduation or post graduation, you will appreciate the role played by Albert Einstein. नील्स बोर का नाम तो आप वैसे ही सुनोगे, बोर्स एटम थ्योरी आपने मेरे ख्याल से पढ़ी होगी, ओके, स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। सिमिलरली डी ब्रॉगली थे, जैसे वेव नेचर ऑफ मैटर जब हम डिस्कस करने आएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन फंडामेंटल था। Then Max Born was there, Paul Dirac, Heisenberg, Pauli, बहुत सारे लोग हैं, Schrödinger, Feynman, and they made really some really fundamental quantum. So these were the very great people, and in every study we should try to understand and appreciate their role. Because somebody may ask that, it is even very important, ये भी जरूरी है, जब आप कोई भी साइंस सब्जेक्ट पढ़े तो उसके डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें, तब आपको पता चलेगा कि उस टाइम वाला आदमी, जैसे 100 साल वाला पुराना साइंटिस्ट जो आप ही के लेवल पे था, स्टूडेंट था, उसके दिमाग में पढ़ना चाहिए या पढ़ेंगे भी कि क्या हिस्ट्री है, किस वजह से ये सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। तो हम पहले न्यूटन के टाइम पे आ जाते हैं, 17th सेंचुरी। तो लाइट वाज देयर एंड न्यूटन एंड अदर्स ट्राइड टू अंडरस्टैंड वही लाइट है, तो लाइट तो सब जगह है। उस जमाने में इलेक्ट्रिक बल्ब तो था नहीं, बट कैंडल लाइट था, स्टार से लाइट थी, मून से रिफ्लेक्टिव लाइट थी, लाइट तो थी वही, अदरवाइज आपको का क्या काम है। तो जब उस टाइम के लोगों के पास क्या था, प्रिज्म था। आप सबको प्रिज्म मालूम है क्या होता है, स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे आपने। तो अगर आप प्रिज्म के ऊपर एक लाइट डालते हो मोनोक्रोमैटिक, वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग वेवलेंथ्स में लाइट स्प्लिट हो जाती है। और सबसे पहले स्कूल में इसी एक्सपेरिमेंट से आप सीखते हो कि लाइट जो हम व्हाइट लाइट कहते हैं, वो एक्चुअली व्हाइट नहीं, उसमें सारे के सारे स्पेक्ट्रम, पूरा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। तो न्यूटन और उस टाइम के भी लोगों ने उन्होंने ये देखा कि है वही लाइट का एक कैरेक्टर। तो न्यूटन ने इसका क्या तात्पर्य निकाला? न्यूटन सेड दैट द लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ओके, ईच पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम। ऐसा क्यों, व्हाई डिड ही मेक सच स्टेटमेंट? इफ यू डोंट यूज दैट, आपको पता नहीं चलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस होगा, तो आपको करना पड़ेगा। तो न्यूटन वाज द पर्सन, ही वाज एक्चुअली इन्वेंटिंग ऑल ऑफ दिस, मैथमेटिक्स भी बना रहे थे और साथ में फिजिकल लॉस भी बना रहे थे। तो तभी उनके दिमाग में आया कि अगर लाइट पार्टिकल्स हो, लाइट है क्या, लाइट जैसे दूसरी जगह आती है, तो मस्ट बी सम काइंड ऑफ पार्टिकल। तो जो होता क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग, जैसे रेड कलर की पार्टिकल हो तो वो इस तरह से डिफ्रैक्ट होगी और ब्लू कलर की इस तरह से डिफ्रैक्ट होगी। तो ही गिव द थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी जिसको बोलते हैं, light is made of particles. So that was Newton's idea way back in the 17th century. Then again, people try to do other kinds of experiments, but light is available everywhere. So then in the 18th century, there were no scientists who accepted this particle theory of light. However, there were some people like Robert Hooke, Huygens and Euler. Okay, Euler was also a famous mathematician. Euler's law भी आप, Euler's law सब कुछ आप पढ़ोगे, okay, when you do your higher studies. इन लोगों ने क्या claim किया कि light is not a particle, but it is actually a wave. और इन लोगों ने क्यों claim किया? Because
they used to see other phenomena like diffraction. अगर small slit से आप एक light को pass करोगे तो उसका जैसे है wave pattern change. So those people claim that Einstein is famous for relativity. What did Einstein get his Nobel Prize on? So that is exactly this. Okay. So Einstein ने दिखाया for the first time that again light may interfere. It may superpose by double slit experiment, which may undergo diffraction, but still it is made of particles. That was again Einstein contribution. Okay, why did he show it? ऐसा उन्होंने क्यों दिखाया, कैसे दिखा पाए? क्योंकि उन्होंने जो किया, लाइट को एक मेटल, अगर आप sufficient energy दे पाएंगे उसमें, तो free electron move करने शुरू होंगे, potential difference create होगा और electricity flow होगा. तो Einstein was the one who used light to provide energy to dislodge electrons from a metal. And then why did he claim that light was particles rather than waves? Only because what he observed that a certain amount of energy was required to dislodge an electron. But you can shine light, but unless a particular amount of energy goes, you cannot dislodge it. And then what happened was, it was expected that once the brightness of light reached a color, okay. So, for instance, very dim blue light would release electrons while very bright red light would not. अगर आप light components पे blue light shine करोगे जो बहुत dim है, फिर भी electrons dislodge होंगे, current flow करेगा. However, अगर आप red light उस पे डालोगे, बहुत bright red light, तब current नहीं flow करेगा. इसी चीज से हमको पता चलता है कि light actually is made of particles, okay? Because उससे तब तो जो blue से भी होगा, वो red से भी होगा. उसमें क्यों नहीं होगा? मतलब bright red light. But instead, अगर particles से हो of a different color as Newton had suggested 200 years before Einstein, then this seemed to be fit with you. So Einstein ने फिर नामकरण किया first of all. So Einstein called these particles of light as photons. Okay. So उसका ये मतलब हुआ bluer color जो नीले रंग के हैं, नीला साइड का स्पेक्ट्रम है, वो they had shorter wavelengths. उनकी वो भी वेव है, but उनके shorter wavelengths है, therefore higher frequencies and higher energies. तो उन्होंने उससे relate किया एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से. So energy of a photon is proportional to its frequency. E is equal to h. और ये h क्या है? ये h है, इसको बोलते हैं Planck's law. It was first proposed by Planck. Okay, and its value is fantastically low, 6.6 into 10 to the minus 34 in certain units. See here. Okay, so this was the first time people started realizing that any fundamental object could be both. It could also be a wave, it could also be a particle. भाई after all अगर सिर्फ particle हो तब तो वो diffract नहीं कर सकता, interfere नहीं कर सकता. और अगर particle ना हो तो photoelectric effect जैसे phenomena वो नहीं दिखा. तो ऐसा कुछ है कि एक चीज में दोनों character है, like wave भी है, particle भी. And this was another bigger jump जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं या वो लोग पढ़ते आए थे. न्यूटन लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स में या तो कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल लाइक होता है, जैसे छोटा बॉल है या कुछ और हो गया, वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, या तो वो वेव होता है जैसे वाटर की वेव्स हो या साउंड वेव. एक चीज दोनों नहीं हो सकती. बट क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप छोटे से छोटे मतलब कने की तरफ जाएंगे तो जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, वो दोनों की तरह बिहेव करता है, लाइट की तरह ही और आपके वेव. तो ये मैसेज उसको मिला and it is repeating the same thing. A red photon did not have enough energy to dislodge an electron. No intensity of red light. तो उससे हो जाता है current flow. So तभी ये तो थोड़ा कार्टूनी है. This showed the energy of light came in discrete packets, as if कोई आपको गन से मतलब quantum particles shoot कर रहे हैं. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमको पता चलता है क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स के बीच में और डिफरेंसेस. ओके, तो क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द, इन क्लासिकल फिजिक्स इट डिपेंड्स ऑन द, इट शुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. हाउएवर आप देखते हैं ये इंटेंसिटी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. सो दिस इज द बिल्डिंग ऑफ क्वांटम थियरी. Similarly, the kinetic energy of the ejected electron depends on the intensity of light. प्लस इसको पुश करोगे तो ज़्यादा kinetic energy होगी. इस पे ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. And then also ये जो चीजें हैं, above a certain frequency में आपकी इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करने शुरू करते हैं. So ये चीज हमको प्रूव करती है duality of light. Duality का क्या मतलब है? Dual nature, dual है, पार्टिकल की और वेव. इससे हम ये सीखते हैं.
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में ये सारी ऑब्जर्वेशन हुई, कुछ कुछ फेमस लोगों ने इसको क्रेडिट किया। उसके बाद एक्चुअली अगर हम समराइज करेंगे तो क्वांटम फिजिक्स क्या है? इट वाज डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी इन रिस्पांस टू शॉर्टकमिंग्स ऑफ क्लासिकल फिनोमेना। जैसे एक चीज हमने डिस्कस करी है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट वाज नॉट द ओनली थिंग। सबसे पहले तो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, ये भी आप लोगों ने या पढ़ा है या पढ़ोगे। इसको भी आप क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझा सकते, नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो आपको कुछ नई चीज लानी पड़ेगी। सिमिलरली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, और भी चीजें थी, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, काफी सारी चीजें थी। ओके, सो व्हाट डज इट डू? क्वांटम फिजिक्स इट डिस्क्राइब्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल एटम, मॉलिक्यूल्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट क्वांटम थ्योरी कैनॉट पॉसिबली हैव अंडरस्टूड। इसका क्या मतलब है? अगर आपको किसी ने फर्स्ट क्वांटम फिजिक्स समझाया और आपको कोई शॉक नहीं महसूस हुआ, आपको लगा है नेचुरल है, इसका एक तात्पर्य निकला कि आपको कुछ समझ नहीं आया। आपको शॉक लगा होगा ना फर्स्ट टाइम जब आप पढ़े। ये फेमस स्टेटमेंट है नील्स बोर का, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर, एक्चुअली बोर्स थ्योरी ऑफ एटम आप सब जानते हैं। उसके बाद मरे जेलमैन, अनदर नोबेल लॉरेट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, नोबडी फील्स परफेक्टली कंफर्टेबल। आप चाहे कितना पढ़ लोगे उसको, क्वांटम फिजिक्स को कितना समझ लोगे, कितनी टेक्नोलॉजी बना लोगे, फिर भी आपको उससे झेलते हुए कंफर्ट नहीं महसूस होगा। क्यों नहीं महसूस होगा? बिकॉज नोबडी हैज टिल डेट बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। चाहे वो कितने बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, नोबेल लॉरेट हो, उसको पूरी समझ नहीं है क्वांटम फिजिक्स। तो इस पे आपको क्या लगता है? दैट्स व्हाई एज यंग पीपल यू शुड फील अराउज्ड कि किसी को नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, हमको आएगा। आप में कॉन्फिडेंस रखो कि अगर आप उसको पढ़ोगे, ढंग से अप्लाई करोगे, तो एक ना एक दिन आप में से किसी को समझ में आ जाएगा, या आप किसी को इसको इस्तेमाल करके दिखा सकते हो दुनिया को, वियर समथिंग। तो इस एरिया में स्कोप है, ये कहने का। ओके, एंड फाइनमैन ने बोला था, आई कैन सेफली से दैट नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम, इवन अ ग्रेट पर्सन लाइक फाइनमैन। क्योंकि फाइनमैन लेक्चर सीरीज है, जब आप कॉलेज में पढ़ोगे फिजिक्स तो आप देखोगे फाइनमैन लेक्चर सीरीज करके है, वेरी क्लासिक, मतलब इसमें इतनी अच्छी तरह फिजिक्स ही कुड एक्सप्लेन इट। ही वाज आल्सो अ ग्रेट रिसर्चर, और उनके टाइम में मेरे ख्याल से पूरे हिस्ट्री ऑफ दिस कभी मिल पाएगा, क्योंकि या तो साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे या तो पढ़ाएंगे, समझाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत क्लासिक है। दैट वाज द एग्जांपल, बट आई होप पीपल आर सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, so what did quantum mechanics tell us? It is basically the recognition that there is less difference between waves and particles than the thought before. Waves और particles में शायद उतना फर्क नहीं है जो हम पहले समझते हैं। एंड उसकी इंसाइट क्या है? लाइट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, एंड पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, दोनों पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे आपके कोई क्लासिकल पार्टिकल, जैसे दो ग्लास दूर से आपको देखने में सेम लगता है, बट पास जाके देखोगे माइन्यूटली आपको फर्क महसूस हो। बट फंडामेंटल लेवल पे अगर आप फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिस्टिंग्विश करने का कोई तरीका नहीं। ओके, अनलेस यू रियली सेपरेट देम फार अवे, आप बोलोगे एक उधर है एक इधर है, बट दोनों को इंटरचेंज करोगे बात वही आती है। पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव्स और वेव पैकेट्स, ये हमने देखा है। वेव गेन और लूज एनर्जी ओनली इन क्वांटाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम में क्वांटम प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब क्या है? If a particle, if you supply energy to it, उसकी एनर्जी बढ़ेगी कैसे? कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ेगी, डिस्क्रीट अमाउंट में। ओके, दैट इज द मैसेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एंड ये डिटेक्शन, जैसे मैं बोल रहा था, आप ऐसे पार्टिकल को आप कैसे देखोगे? उसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगाओगे या डिटेक्टर लगाओगे या स्क्रीन पे लाइट शाइन करेगी, देन व्हाट विल हैपन दैट जो अर्लियर वेव थी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पार्टिकल, दैट विल सडनली चेंज इनटू अ न्यू वेव। Okay, and everything in quantum mechanics is probabilistic. जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड में दिखा रहा था, कौन सा ट्रेजेक्टरी लिया पार्टिकल ने, कौन सा पाथ लिया, इट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिस्टिक। आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि कौन सा पार्ट लिया। आपने पढ़ना शुरू किया होगा स्कूल में, यस और नो, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू किया होगा ना। जैसे आप कॉइन टॉस करते हैं, कितना प्रोबेबिलिटी से वो यस तो जैसे कॉइन टॉसिंग में आपने देखा है प्रोबेबिलिटी 50% ऑफ द टाइम्स हेड आता है, 50% ऑफ द टाइम्स टेल आता है। तो आप एक कॉइन टॉस करोगे, आप सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते हो हेड आएगा कि टेल।
बट अगर फेयर कॉइन वाइज तो आप बोल सकते हो हेड की प्रोबेबिलिटी आने के हाफ है और टेल की प्रोबेबिलिटी। आप इसको कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आप 100 बारी टॉस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 बारी हेड आएगा, 50 बारी टेल आएगा। सिमिलरली क्वांटम पार्टिकल के साथ आप एक जैसे ये आई वाज टॉकिंग ऑफ सो प्रॉपर्टीज, ओके, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? Electrons are tiny and very light particles, okay, so they have negative electric charge, they have very small mass, however they can behave both as particles and as waves. So ये हमको मान के चलना पड़ेगा, and not only electrons, any other small particles have essentially the same character. So for instance a photon, जिसकी हम बात कर रहे थे, a particle representing a quantum of light or other electromagnetic radiation, radiation common है. It can be light in the visible range. It can also be microwave. जो radiation आप अपने मोबाइल फोन में यूज करते हो. It is both a particle and wave. Okay. So first time this person de Broglie gave this relation in 1923 that particles of matter as like photons they can also behave like waves. Okay. So उसने बोला कि using laws of special relativity, the photon, a particle of energy, had a wavelength associated with it. And electrons, particle of matter, such as electrons, also had a wavelength. So wavelength is a common feature of all fundamental particles. So then de Broglie proposed this fundamental relation. What is lambda? Lambda is the wavelength. What is h? H is the Planck's constant divided by momentum of the particle or divided by mass into velocity of the particle. So each and every object in the universe, each and every constituent of matter or energy has a certain wavelength, which is called the de Broglie wavelength. Okay. So de Broglie wavelength आप निकाल सकते हो. Actually, it is a good exercise. अगर आप सोचोगे, for example, कि एक इलेक्ट्रॉन की de Broglie wavelength हम निकालेंगे, जो कि for instance इस velocity से जा रही है 6 into 10⁻⁶ meters per second. अगर आप उसकी wavelength निकालोगे simply h by p I by mv, तो क्या आएगा? उसकी wavelength जैसे of the order of 10 to the minus 10 मतलब नैनोमीटर. इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर. पर जस्ट फॉर फन अगर हमने कोई समझ लीजिए बेसबॉल या क्रिकेट बॉल जिसकी वेट क्या है, सपोज 10 to the power of minus 34. अब आपने सोचा कितना स्मॉल है. सो दैट इज द आंसर इन नॉर्मल लाइफ. अगर आप पार्टिकल्स को देखते हो यू डोंट सी देम एज आप तो क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, जो भी आपने कभी देखा है बॉल को अपने आप से इंटरफेयर करते हुए? सुपर नहीं देखा ना. क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो भी वेव्स है. मैं आपको थ्योरी तो यही बताती हूँ. उसका आंसर सिर्फ यही है कि उसकी वेवलेंथ है 10 to the power of minus 34. आप उसको नहीं देख सकते. Whereas अगर इलेक्ट्रॉन को मारोगे जिसकी वेवलेंथ नैनोमीटर के आसपास है, उसको आप एक दूसरे से वेव लाइक बिहेवियर इंटरफेयर सुपरपोजिशन आप देख सकते हो. दैट इज द आंसर. Okay, so now let us move ahead. So we have learned about wave-particle duality. There is also another principle called complementarity. Particular आप experiment design करोगे, उसमें या तो आपको इलेक्ट्रॉन का वेव पिक्चर दिखेगा, वेव प्रॉपर्टी दिखेगी, अदरवाइज आपको पार्टिकल नेचर दिखेगा. दोनों को एक साथ हम नहीं देख सकते. ओके, इसका मतलब वो हो गया complementarity. So these are fundamental laws of physics. वेव नेचर हो गया. Okay, let us try to move ahead. De Broglie relation दोबारा हो गया. And the whole point is because since we were earlier talking of Newton's equation, ये कोई तो इक्वेशन होनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा क्वांटम पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे, ट्रैवल कैसे करेगा, उसकी काइनेटिक्स क्या. तो इस इक्वेशन को सबसे पहले 1926 में अर्विन श्रोडिंगर ने प्रपोज किया. दिस इज द इक्वेशन. ये साई फंक्शन क्या है? यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट सम पॉइंट. इसका मॉड स्क्वायर लोगे तो आपको ये बताएगा एट दैट पोजीशन आर. ओके, आर मतलब एक्स वाई से थ्री डायमेंशनल स्पेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसको मॉड स्क्वायर करोगे, ये जनरली कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो इसका मॉड्यूलस स्क्वायर लेना पड़ेगा. तो उसको आप बता व्हाट विल इट टेल अस? इट विल टेल अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एज आई वाज सेइंग. तो इसका ये मतलब हुआ दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन. अनदर very counterintuitive, very mysterious feature of the world. Okay, अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे, जैसे ये दो स्लिट है इधर, ओके, सामने भी दो स्लिट्स है. अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन interferes with itself. Similarly, the same thing happens with
photon. Okay, so इसने समझा कि what we learned like this that electron or photon does not have a definite location until it is observed. ये मैं बोल रहा हूँ बार-बार. Until then it has a probability distribution of being in various positions. That I am repeating again and again. The probability distribution of electron, it can also interfere with it. In theory, in practice, it can have any spin in this combination. Okay, as long as the total spin is correct. So that is why when we are using quantum laws, we have to talk of qubits, not only bits or not only bits. Okay. So now मतलब कहीं आप समझते जैसे इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई, जैसे एनसाइक्लोपीडिया आपने सुना होगा, उसमें सारी की सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, उसके वॉल्यूम होते समझकर हम पिक करते हैं. आजकल तो खैर बच्चे देखते नहीं है इसको इतना, क्योंकि नेट है, वेब है. उस जमाने में जब वेब नेट नहीं होते थे, लोग लाइब्रेरीज में जाते थे, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम निकाल के उनको देखते थे. और वो ABCD जैसे एक वॉल्यूम, उसमें सिर्फ A से ही जो वर्ड स्टार्ट होते हैं या फ्रेजेस, उसकी इंफॉर्मेशन होती है. तो उसका आप पिक्चराइज करें, जैसे ये इंसाइक्लोपीडिया है, इसमें A से है, तो आप इसको खोलोगे तो उस पर कुछ लिखा होगा. ठीक है, टाइप सेट होगा. अब आप उसको सोचोगे टाइप का मतलब क्या है. आफ्टर ऑल कोई इंक थी कभी जिसने बनाया, पेज के ऊपर इंक स्प्रेड